Hello friends, good morning and good morning for that's why because I'm just recording this video in the morning time, but I'm greeting you with good morning, good evening and good afternoon, good night whenever you are watching this video, because today we are going to start a second part of our poetry section, Dirty Dabbu. So just stay tuned, don't forget to subscribe and hit the bell icon. In the previous class or in the previous video, you have just learned till the very first paragraph of the same page you are seeing right now in front of your screen. So in the previous class you have learned that Dabbu is a very dirty boy, and you know why? Because he was a messy eater, he never had a wash, and he hated bathing every day. And Dabbu's mother was very angry with him, and you know what is the reason? The reason is that Dabbu never listened to his mother. She had a hard time. That means she is feeling very difficulties in doing something, that is in cleaning Dabbu's clothes, because there were a lot of stains upon it. Stains means a spot that is not easily removed. And then Dabbu's friend always teased him. Dabbu's friends always teased him, and they are saying dirty Dabbu. They are just saying Dabbu as a dirty Dabbu. Dabbu had jam stuck all over his face because, as you learnt in the previous class, that he never had a bath. His school uniform was soiled, means very dirty. Aniket, don't write on the screen. His school uniform was soiled, that means very dirty. He smelled dirty. उससे जो स्मेल आती थी, डर्टी आती थी डब्बू के बॉडी से. फ्लाइज सर्कल्ड अराउंड हिम ऑल द टाइम. उसके आसपास हमेशा ही फ्लाइज, मक्खियां उड़ती रहती थी, लेकिन डब्बू को कोई परवाह नहीं थी. बट डब्बू डिड नॉट केयर. वन डे डब्बू फेल्ट एची. एक दिन डब्बू को अपने बॉडी पे इचनेस फील हुई. एंड द मीनिंग ऑफ इची इज an uneasy feeling on the skin that makes one want to scratch. एक ऐसी फीलिंग होती है किसी भी इंसान को कि आप विवश हो जाते हैं कि आप अपनी बॉडी को स्क्रैच करें, उसे नोचे. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इचनेस. सो डब्बू ने भी अपनी बॉडी पे वो सेम चीज फील की. इच इच इची इच इच, विच मीन्स कि वो बस उसे वो इचनेस की वजह से वो बस अपने शरीर को नोच रहा है और वो नोचता ही जा रहा है. ही स्क्रैच्ड हिज नेक. उसने अपनी गर्दन को नोचा. ही स्क्रैच्ड हिज आर्म्स. उसने अपने आर्म्स पे स्क्रैच किया. ही स्क्रैच हिज एल्बोज, टमी एंड लेग्स. फिर उसने अपने एल्बोज पे, टमीज पे, दैट मीन्स पेट पे, फिर लेग्स पे. लेकिन उसके बाद भी उसे वो खुजली अपने पूरे बॉडी में फील हो ही रही थी. इच इच इची इच इच, स्क्रैच स्क्रैच. उसे वो फीलिंग्स बस आ रही थी, उसे अपने शरीर पे इचनेस फील हो रही थी और उसके वजह से वो बस स्क्रैच करता ही जा रहा था. द मीनिंग ऑफ स्क्रैच इज, हियर इज अ वर्ड स्क्रैच. ओके, हियर इज अ वर्ड स्क्रैच which means to rub lightly, to feel good. Okay, actually scratch is a meaning which means to rub lightly to relieve itching. अपने बॉडी को धीरे धीरे, आसानी से ऐसे स्क्रैच करना, ऐसे उसे नाखूनों से खुजलाना या कोई भी नुकीली चीज से, ताकि आपको खुजली से थोड़ा आराम फील हो सके. स्क्रैची स्क्रैच स्क्रैच. अब क्या कर रहा है डब्बू? ही इज जस्ट स्क्रैचिंग हिज होल बॉडी. वो अपने पूरे शरीर को बस नोचता ही जा रहा है.
डब्बू, you haven't had a bath in a week now. Please don't be lazy, shouted डब्बू's mother. जब ये सब चीजें डब्बू की मदर ने देखी तो उन्हें काफी गुस्सा आया और वो चिल्लाकर डब्बू को बोली, डब्बू, तुमने लगभग एक हफ्ते से, एक वीक से, एक सप्ताह से तुमने बाथ नहीं लिया है, तुम नहाए नहीं हो। लास्टली अब तो जाकर प्लीज तुम अपनी ये लेजीनेस छोड़ो, तुम अपना ये आलसपन छोड़ो। बट डब्बू डिड नॉट लिसन, लेकिन इसके बावजूद भी डब्बू ने अपनी मदर की बातें नहीं सुनी। He went to school without a bath again. वो फिर से स्कूल गया बिना नहाए। Run, run, Dirty Dabbu is here, shouted everyone. Okay? Run, run, Dirty Dabbu is here, shouted everyone. As you just learned that Dirty Dabbu did not listen to his mother. वो अपनी माँ की बात नहीं सुन रहा था और वो स्कूल फिर से बिना नहाए ही चला गया। ओके, रन रन डर्टी डब्बू इज हियर। उसके दोस्त, जो भी आप फ्रेंड्स बोलिए या उसके क्लासमेट्स बोलिए या जो भी उस स्कूल में बच्चे थे, वो सारे लोग चिल्लाने लगे कि भागो भागो, डर्टी डब्बू आ गया। आस्क मी व्हाई, पूछो ऐसा क्यों हुआ। वो उसके जितने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स थे, वो चिल्लाकर भागने क्यों लगे। डब्बूज आर्म्स एंड लेग्स वेयर रेड फ्रॉम स्क्रैचिंग। डब्बू के हाथ और पैर स्क्रैच करते करते बिल्कुल लाल पड़ गए थे, टोटली रेड। हिज फेस वॉज स्टिकी विथ फूड। उसका जो चेहरा था, उसका जो फेस था, वो उसके पूरे फेस पे फूड स्टिक थे। डेट मीन्स कि खाना लगा हुआ था उसके पूरे चेहरे पे। लाइक वो खाने के बाद, इफ यू नो कि वो खाने के बाद अपना फेस भी प्रॉपरली नहीं वॉश कर रहा है, वो अपने हाथ नहीं वॉश कर रहा है, तो जितने भी खाना जो भी वो खाता था वो उसके फेस पे चिपक गए थे। और इस वजह से द फ्लाइज स्टिल सर्कल्ड अराउंड हिम, और अभी भी मक्खियां उसके आस पास घूम रही थी। After learning that Dabbu's arms and legs were red from scratching and his face was sticky with food, and because of this thing, the flies circled around him. Dabbu could not bear the itchiness any more. Dabbu could not bear the itchiness any more. अब डब्बू से ये खुजली और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ठीक है, अब डब्बू इस स्क्रैचेस को, उसके बॉडी पे जो खुजली हो रही थी, उसे अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इच इच इची इच इच, स्क्रैच स्क्रैच, बस खुजली होती जा रही है उसके पूरे बॉडी पे, हाथ पे, पैर पे, टमी पे, नेक पे, फेस पे, एवरीवेयर। और वो क्या कर रहा है, जस्ट स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, वो बस उसे नोचता ही जा रहा है। डब्बू फ्लेड फ्रॉम स्कूल एंड रेन अवे। Okay, there is a word fled which means ran away. There is a word fled which means ran away. अब डब्बू अपने स्कूल से दौड़ता है और वो दौड़ता हुआ कहाँ जाता है, अपने घर की तरफ। There is a word fled, F-L-E-D. Okay, here it is a word fled which means ran अवे, किसी जगह से भागना, किसी एक पर्टिकुलर जगह से भागना ही क्या कहलाता है, फ्लैड। एंड द मीनिंग ऑफ फ्लैड इज रेन अवे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो डब्बू जस्ट रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड रेन होम। वो बस दौड़ता हुआ स्कूल से भाग जाता है, और किधर की ओर दौड़ता है, वो अपने घर की तरफ। एंड देन समथिंग हैपेंड, और तभी एक चीज होती है, और तभी कोई चीज होती है। आस्क मी व्हाट, पूछो मुझसे क्या। इट रेन्ड, इट रेन्ड, बारिश। जब डब्बू अपने शरीर पे इचनेस को वो अब और ज्यादा टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो स्क्रैच करता है। फिर भी जब वो उस चीज को
अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो स्कूल से दौड़ते हुए निकलता है अपने घर की तरफ। लेकिन तभी कोई चीज होती है, और वो चीज क्या है? बारिश। द कोल्ड वाटर washed away the dirt on डब्बूज फेस, आर्म्स एंड लेग्स। जो ठंडी बारिश की बूंदें डब्बू के ऊपर पड़ी, उन बारिश की बूंदों की वजह से डब्बू के चेहरे पे, हाथों पे, पैरों पे, उसके पूरे बॉडी पे जितनी भी गंदगी थी, ऑल ऑफ दैट वॉश्ड अवे, वो सारी चीजें धुल गई। पानी के साथ वो सारी चीजें धुल गई। द इचिंग डिसअपियर्ड, अब डब्बू को अपने शरीर पे और खुजली नहीं हो रही है। देयर इज अ वर्ड डिसअपियर्ड विच मीन्स गायब हो जाना। पैटर, पिटर, पिटर, पैटर विच मीन्स अब वो अपने पूरे बॉडी को सुखा रहा है। ठीक है, अब उसे अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अब डब्बू को अच्छा अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा है। डब्बू रिच्ड होम कंप्लीटली वेट, डब्बू अपने घर पूरा भींग के पहुंचा। हियर इज अ वर्ड वेट विच मीन्स गीला, भींगा हुआ। रिच्ड पहुंचना, होम घर, कंप्लीटली पूरी तरह। डब्बू पूरी तरीके से भींगा हुआ अपने घर पहुंचता है। He sniffed and sneezed. There is a word sniffed which means repeated sniffing, which means sound made by inhaling air through the nose. आप जब अपने नाक के थ्रू एयर लेते हो, ऐसे ऐसा वाला जब आप साउंड करते हो, डेट इज स्निफल्ड। एंड स्निफ्ड मतलब छींकना। डब्बू जब अपने घर पहुंचा तो वो स्निफ कर रहा है, वो नाक के थ्रू सांस ले रहा है और वो लगातार छींकता जा रहा है, लेकिन अभी वो मुस्कुरा रहा है। बट ही स्माइल्ड। आस्क मी वाई, पूछो मुझसे कि वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों खुश हो रहा है। नो इच 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 इच, अब उसके पूरे बॉडी पे किसी तरीके की कोई खुजली नहीं है। नो स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैची स्क्रैच स्क्रैच, अब उसे अपने पूरे बॉडी पे कहीं भी स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है। डब्बू हैड अ बाथ, अब डब्बू ने नहा लिया है, अब डब्बू ने बाथ ले लिया है। ही चेंज टू क्लीन क्लॉथ्स, और जैसा कि उसके कपड़े भीग गए थे ड्यू टू हैवी रेन, सो दैट्स वाई उसने अपने कपड़े चेंज किए और अब उसने साफ कपड़ों को पहना है। ही क्लीन्ड हिज मेसी रूम, उसने अपने गंदे से रूम को भी साफ कर लिया। जो कमरा उसने पूरा फैलाकर और गंदा करके रखा था, उसने उस रूम को भी क्लीन कर लिया है। डब्बूज मदर वॉज हैप्पी, और अब डब्बू की मदर काफी खुश है। यू नो बॉय, और आई होप कि आपको ये रीजन पता है। ओके, सो राइट नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द सेम चैप्टर. So the first question is, she had a hard time washing food stains off his clothes, means that you have learnt in the chapter that डब्बू की मदर को काफी मुश्किल होती थी कि वो डब्बू के क्लॉथ से फूड के स्टेन्स हटाए। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट, द स्टेन्स वेयर टू डिफिकल्ट टू रिमूव. सेकंड, द स्टेन्स हैड बिकम ड्राई एंड हार्ड. So the right answer is number first. Okay, so take it out in your books. Second one, Dabbu's friends teased him because डब्बू के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते थे क्योंकि he was very naughty, वो बहुत शरारती था. Rishu, don't write on the screen. And second, he was very dirty. A का first dear, A का one. And the answer of B is second, because he was very dirty. Clear? Number C, Dabbu felt itchy and scratchy. Dabbu felt itchy and scratchy because he hadn't had a bath for a week and was dirty. उसने सप्ताह से वॉश नहीं किया था खुद को, वो नहाया नहीं था और वो काफी गंदा था. और नंबर बी, दैट इज नंबर सेकंड, ही हैड एन एलर्जी, या उसे एलर्जी थी. सो द राइट आंसर इज नंबर फर्स्ट. ओके, डू इट वेरी फास्ट. ओके,
You have to take a screenshot. As I told you, Dabbu fled home from school because he couldn't bear the itching anymore. And here is the questions in this page also. So you have to take a screenshot right now. This is the answers of the question. The first question was, what did Dabbu's friend call him and why? डब्बू के दोस्त उसे क्या बुलाते थे और क्यों बुलाते थे? तो आंसर इज डब्बू's friend call him dirty डब्बू because he is dirty and he never had a bath. डब्बू के दोस्त उसे डर्टी डब्बू बुलाते थे क्योंकि वो काफी गंदा रहता था और वो कभी नहाता नहीं था. The second question is, why was डब्बू's mother angry with him? डब्बू की माँ डब्बू से क्यों गुस्सा रहती थी? डब्बू's mother was angry with him because she is having difficulty in washing food stains of his clothes and she had to clean his messy room. She tried very hard to give Dabbu a bath but got no success. Clear? So now everyone is ready to take the next screenshot of next question and answer. So as the third question was, what circled around Dabbu all the time and why? So the answer is, flies circled around him all the time because his face was sticky with food and he had stuck all over his face. Okay, so one thing I'm telling you, you have to write here. Okay, between had and stuck, you have to write J A M. Rishu, don't write on the screen, otherwise I will just remove you from the class. So just focus everyone. Between had and stuck, you have to write jam. Clear? You have to write fly circled around him all the time because his face was sticky with food and he had jam stuck all over his face. Is it clear? Number D. What helped Dabbu? Pratyush, don't write on the screen. What helped Dabbu's itching to stop? Rain helped Dabbu's itching to stop. The cold water washed away the dirt on Dabbu's face, arms, and legs.